बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। वेलकम टू ऑल। राजीव भैया कहाँ से शुरू करेंगे? क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन? जी गुरुदेव। साधना से संबंधित कोई क्वेश्चन? जी, if you have any questions, please do ask. Pokud má nějaké otázky, pokud máte, teď je čas se zeptat. Yes. Any question, Stephen? Questions, please. Otázky? Yes. Richard. Actually, it's not a question, but it's a wonderful experience my wife Andrea had in the morning sadhana with you. Yes. So, and she feels ashamed to share it with us, but I found it so wonderful that I would love to ask her to share it. No problem. I had a vision. It was only for a few seconds. You were blue. And you had a big cougar sitting next to you with big teeth. It was only for a few seconds, but... अच्छा है, अच्छा है, very nice, beautiful. Česky? Mám česky? Ali. Řeknu to česky. Já jsem během ranní sadhany viděla Gurudeva modrého a vedle sebe měl velkou pumu, ale pumu tu americkou hnědou. A bylo to jenom na pár sekund, ale... चैनल पे दोनों चले जाएं हिंदी में। जी। पहला एक्सपीरियंस का, दूसरा क्वेश्चन। I was actually lost. Oh. Já jsem se úplně ztratil ráno. So I will request you to repeat it yet again. Please repeat your question. Nějaké otázky? No, I will request you to repeat it again because I was in a different dancing tune, It was so just- I was lost. Andrea saw Gurudev, he was blue and he has a cougar next to him. Yes, actually, आंद्रिया को ये अनुभव हुआ जिन्होंने आपके शरीर को गुरुदेव नीले शरीर में पाया। इसके पहले रिहाट को भी माता मंदिर में वो चीज़ उसको पिछला कोई पृष्ठभूमि नहीं पता कि भगवान शिव कौन, माँ कौन, पिता कौन, गुरु कौन, हमारा इतना विस्तृत आध्यात्मिक परंपरा क्या, कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल खाली। बैकग्राउंड नहीं पता है। बैकग्राउंड नहीं पता, तो कहीं कोई स्मृति पड़ी हो? कोई स्मृति कोई नहीं, बिल्कुल खाली। तो उसने उन्होंने नीले शरीर में देखा हमको। जी, तो उन्होंने आपको पाया। उन्होंने देखा कि एक विशाल माँ का स्वरूप जो थोड़ा भिन्न मूर्ति से, और उनकी गोद में आप बैठे हुए नीले शरीर में, आपका शरीर नीला। तो ये घबरा गया क्योंकि इनकी स्मृति में नीला शरीर मतलब पॉइजन होता है। हम बोले पॉइजन ये तो सभी लोग देखते हैं, तो कॉमन चीज़ है। ये रूप तो यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, सभी देखते, रोज ही देखते, दिन भर देखते जी। ये तो ऐसे ही चलता रहता, सर्कस है।
तो ये उन्होंने देखा और यही जो विरक्ति भाव में रहेगा, सारे साधन संसाधन होते हुए भी जो देने वाले भाव में रहेगा, पूर्णता का जहाँ भाव रहेगा, जहाँ पर उद्गम है नहीं, अंत है नहीं, वो स्वरूप नीला ही है। वह शुरू में वह स्वरूप नीला ही दिखेगा। स्वरूप लीला। जी गुरुदेव जी। ऐसे जी। तो जहाँ विरक्ति का भाव रहता है वहाँ नीलापन दिखता है। विरक्ति से। गुरुदेव बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेशन पहाड़ों का काम ही है। यहाँ से लेके कैलाश तक पहाड़ ही पहाड़। जी गुरु। Mám začít česky nebo anglicky? Já bych se chtěl Gurudeva zeptat, co se vlastně stalo v mý meditaci 2 dny zpátky na Havanu, co se tam přihodilo, jestli na to má nějakou odpověď. And I have a question for you, Gurudev. What did happen 2 days ago on Havan in my meditation? If you had some answers for that. I had some visions that I believe that were happening in the room, but I don't know what stand I can took with this. Se zeptejte česky, já to přeložím případně. A řekněte, co jste měl přesně. Já ji právě nechci jako moc specifikovat, protože jsem chtěl vědět, co se stalo, jestli to šlo jenom jako o imaginaci, nebo jestli... Musíte říct, co šlo, musíte to vyspecifikovat. Ještě jednou. Musíte to vyspecifikovat, musíte se zeptat. 2 dny zpátky na Havanu jsem měl vlastně takovou jakoby vizi, že jsem začal meditovat a viděl jsem kolem sebe takové zvláštní věci, které neumím právě specifikovat, tak jestli by mi Gurudev mohl nějakým způsobem vysvětlit. He says he saw some strange things around himself during meditation, and maybe Gurudev can explain. He doesn't say what is it. Just strange things. What do you mean by strange? Co tím myslíte, divné věci? Musíte to opravdu vyspecifikovat. You can define those if you can define those strange things, it will be much more mathematically correct and specific will be very well answered to. गुरुदेव इनको हवन के समय में और जब संकल्प हवन जब वो प्रक्रिया चल रही थी तो बहुत विचित्र चीज़ें इन्हें दिखी। वो विचित्र चीज़ को यह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। तो चूँकि कभी वो चीज़ें कल्पना में नहीं थी इनके, जी, इसलिए विचित्र लग रही थी। जी। तो वो जानना चाहते हैं वो क्या थी। कूड़ा। Yeah. So you saw things that appeared to be strange to you because you never saw it before, and you had no memory what exactly is that. And subsequently I asked Gurudev, but what was that? So basically the garbage that engulfs around us and that was cleansed up while you were undergoing the process of Darbar. क्लीनिंग प्रोसेस का वो बाई प्रोडक्ट था। That was the byproduct of the process while you were cleaning, so the true you coming out and the molasses were out actually. The mic is down there. एक क्वेश्चन आया है, जी रोहित ने पूछा है, जी। तो हमने इनसे कहा था बाद में बात करना, जब दरबार के सेवक होंगे तो चर्चा करेंगे। हाँ फिर मुझे लगा दरबार के सेवकों से भी कम नहीं है, जी।
जी बिल्कुल गुरुदेव। तो प्रश्न का उत्तर हो ही जाना चाहिए। हाँ, सबको लाभ मिल जाएगा उससे। जी हाँ, इनका कि अपने आप से कैसे पहचाने कि हमारी जो साधना है वो सही पथ पर है, सही दिशा में है। ध्यान के जो है वो सही दिशा में हो रहा है, हम भ्रमित ना हो, क्योंकि बहुत सारी स्मृतियाँ हम स्वयं बना लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो इनका कहने का अर्थ है कि हम कैसे पहचाने कि हम साधना की सही दिशा में जा रहे हैं। जी, दिस वॉज अ क्वेश्चन कमिंग इन फ्रॉम रोहित, वन ऑफ द disciples of Tohle je jeden z žáků, Rohit, který se ptá, that how would we identify that we are on the right path of sadhana? jak jsme schopni identifikovat, že jsme na správné cestě sadány. Because during the process there could be possibility of getting misguided, misled by our own creation and our own misconception. To máme zjistit. इल्यूजन ऑल्सो, इल्यूजन। तो जो भ्रम है कि सही है क्या है, इसकी सबसे छोटी सी पहचान है कि दिशा हमारी सही है या गलत है। जिस चीज़ को हम बार बार कहते हैं कि जीवन में जो 5 भाग है, जब भी कभी क्वेश्चन उठे तो अपने मूल की तरफ जाना है। हमारा मूल क्या है? हमारा मूल है हमारा ईश्वर। हम ईश्वर का ऐश्वर्य हैं। तो हम कभी प्रश्न ढूंढने जाएं तो पीछे की ओर जाएं। तो ईश्वर का जो ऐश्वर्य है उसी में से एक अंश का परमाणु हमारा जीवन है। जीवन में 5 भाग हैं, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। इन्हीं में आपके प्रश्नों के उत्तर छुपे रहते हैं। तो जब भी हम विश्लेषण में जाते हैं, वृत्ति में जाते हैं, जो चौथा आर्बिट है वो वृत्ति का है। तो वृत्ति में विश्लेषण का जो भाव है और दूसरा एक भाव तुलन का, तुलना करते हैं। विश्लेषण किन भावों से करते हैं, तो उसमें विश्लेषण में क्रिया है वो तुलन की क्रिया है। तुलन में आधा भाग जो है वो न्याय, धर्म और सत्य का है और आधा भाग प्रिय, हित और लाभ का है। साधना के पश्चात भी हमें प्रिय, हित, लाभ अगर ज़्यादा परेशान करे तो समझो साधना नहीं हो रही है। और साधना के बाद हमें बार बार न्याय, धर्म और सत्य की ओर प्रेरणा मिले बार बार, क्योंकि पूर्णता तो हुई नहीं है, इसलिए स्थिरता हो नहीं सकती। प्रेरणा ही मिलेगी, अधिकता भाव मिलेगा, बार बार भाव, बार बार भाव। तो अगर भौतिकता की तरफ बार बार भागने का मन करता है, इस साधना के बाद जो इस दरबार से जुड़ के होती है उसकी बात कर रहे हैं हम, बाकी सब साधना की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ जैसी साधनाएं कराई जा रही हैं वो बेचारे गुरु खुद ही परेशान हैं। ठीक है, आप देखते ही हैं। जी, तो इस दरबार से जुड़ने के बाद जो साधना होती है आप करते हैं, तो आप में एक भाव हो, अगर ये रहता है कि यार साधना और करनी है, जल्दी समय मिले, कौन सा समय मिलेगा कि हम फिर से साधना करें, बैठ के ध्यान करें, विरक्ति होने लगती है, तो इसका मतलब है कि आप सही पथ पर हैं। जब आप ध्यान में चले जाते हैं, लौटने का मन ना करे। जी। जैसे आप में से बहुत लोग जब साधना कराते हैं तो आप लोग चले जाते हैं तो वापस आने का मन नहीं करता। हम ज़बरदस्ती खींच के लाते कई लोगों को, वापस पकड़ के लाते हैं, यहाँ डेड बॉडी की तरह पड़े रहते हैं, वापस लाते हैं। ये आना नहीं चाहते, ये कहते हैं यहीं से काट दो, हमेशा के लिए अब जाने दो, हो गया, यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना। क्योंकि कंकड़ पत्थर देख रहा है एक तरफ, हीरे मोती हैं। तो अगर ये भाव बनता है, बार बार ध्यान साधना करने का, पूर्ण होने का भाव बार बार आता है, बार बार हम प्रयास भी करते हैं उसके लिए, तड़पन होती है अंदर, कुछ भी काम करते रहते हैं लेकिन हमारा मन मस्तिष्क उधर ही लगा रहता है बार बार, तो समझो आप सही पथ पर हैं, आप न्याय, धर्म और सत्य की यात्रा पर हैं। न्याय, धर्म और सत्य के पड़ाव पर नहीं पहुँचे हैं मंजिल पे, लेकिन आप उसकी यात्रा पर हैं। बावजूद इसके अगर बार बार भौतिकता सताती है, बार बार लगता है कि नहीं हमें अभी ये बनाना है, ये करना है, वो बनाना है, ये बनाना है, ये खरीदना है, उस पर चलना है, अभी 5 मंजिल बनाना है, अभी तमाम की गाड़ी लेना है, वो कुछ भी भौतिकता में जाते हैं। अरबपति बनना है, ये खरबपति बनना है,
ऐसे भाव बने रहते हैं, मतलब है कि आप साधना के पथ पर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं हैं। जी बहुत सिंपल है। जी, बहुत अच्छा। और आप में से बैठे हैं ज़्यादातर लोग 99% लोग साधना के बाद यही भाव होता है कि सब बेकार है इसके आगे। जी यही भाव आता है। क्या भाव आता है? जी सब बेकार है। जी गुरुदेव। ये किस, अरे सब अच्छा नहीं लग रहा, लौट के अच्छा नहीं लगता है। जी। विरक्ति सी रहती है। जी मन, जी, वो उदास तो नहीं कहेंगे उसको हम, लेकिन नीरसता जैसी रहती है। उदासीन। हाँ, नीरसता जी, रहती है। जी। रस नहीं कोई। रस नहीं है, हाँ, रसविहीन। रसविहीन रहते हैं। जी एक क्वेश्चन स्वामी जी ने किया अभी मुझसे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान साधना में, यात्रा में क्या साध्य किया जाए, किस पर फोकस किया जाए, जी या कुछ नहीं किया जाए, जी अथवा कुछ जी। भी ना किया जाए और दरबार जहाँ की यात्रा करवाए उसके साक्षी रहें। इसमें सवाल भी है, जवाब भी है जी गुरुदेव। इस प्रश्न में। जी पूरा प्रश्न नहीं है, लेकिन जितना प्रश्न समझ में आ रहा है उसका उत्तर इतना ही है कि ध्यान साधना के लिए मामला प्रयास से शुरू होता है, जबकि साधना फलित होती है अप्रयास से, बिना प्रयास के। लेकिन शुरुआत उसकी प्रयास से करें। प्रयास से होती है। इसलिए जब कोई चीज़ सिखाई जाए तो उसको सीखना मतलब प्रयास करना है। बिल्कुल। धीरे 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 प्रयास करते करते प्रयासविहीन। अनुभव होने लगेंगे। जी फिर वो आपकी पूंजी बन जाएगी। जी फिर पूंजी के आधार पर विश्वास पैदा होगा। जी ये विश्वास के आधार पर आगे की यात्रा होगी जी कि आगे सब कुछ है। फिर आगे लिखा है कि या कुछ ना किया जाए, जैसा लोग कह देते हैं कि अप्रयास। अप्रयास उसी को फलित होता है जिसने खूब प्रयास किए हों, एग्जैक्ट। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जिसने बहुत प्रयास किए हों, बहुत प्रयास किए हों किसी चीज़ के लिए। जी जैसे वैज्ञानिक जी किसी भी खोज में निरंतर बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, फेल होता है, बार बार फेल होता है, फिर जी। फेल होता है, फिर करता है, फिर फेल होता है। जी लेकिन एक विश्वास उसको रहता है कि हम सफल होंगे। क्यों? उसको कहीं कहीं सफलता दिखने लगती है, जी तो उस आधार पे और प्रयास करता है। तो प्रयास करते करते जब थक जाता है एक बार आके, छोड़ देते छोड़ो इसको, नहीं होगा, बस उसी दिन। वही से प्रयास सफल होता है। जी गुरुदेव। गैप, अंतराल में पहुंच गया। बिल्कुल। जी गुरुदेव। क्योंकि आना और जाना ये दोनों प्रयास हैं। जी गुरुदेव। आना और जाना के बीच में जहाँ संधि बिंदु है, बस जहाँ यात्रा नहीं है, जी वही खेल है। बस सारा सिस्टम वही है। जी। वही सब प्रकाश है। जी। वही सब कुछ होने का कारण है। जी और गुरुदेव। जो सब कुछ होने का कारण है, यदि आप उसको समझ गए जी तो सब कुछ समझ गए। जी गुरुदेव। इतनी बात है। तो ध्यान साक्षी भाव से ही संभव है, शुरुआत में प्रयास से। इसीलिए गुरुकुल होते हैं, इसीलिए परंपराएं होती हैं, जी। इसीलिए सिखाया समझाया जाता है। तो जैसे निद्रा लाने के लिए ऐसा नहीं कि आप खड़े खड़े सो गए, गिर गए। आपको लेटना होता है, जी आराम मुद्रा में होना होता है। आसन ऐसा होता है कि नीचे कुछ चुभे नहीं जी और लेट सकें, आंख बंद करना होता है। जी धीरे धीरे विचार अपने आप शांत होते जाते हैं, निद्रा आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए प्रयास यही करना है कि हमें साक्षी होना है हर घटना का। जी तो साक्षी भाव ही हमें अनुभव कराता है। जी वो हमारी पूंजी होती है, पर्सनल। जी तो साक्षी भाव में सब कुछ करना है और करते 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 धीरे धीरे आकर्ता के भाव में आ जाएंगे। जी बिल्कुल। है ना? जी गुरुदेव। तो आकर्ता हो गए, कांटेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। जी गुरुदेव। अकर्ता भी बोल करके नहीं हुआ जा सकता। आकर्ता इस भाव में आकर्ता है जी कि वो सक्रिय नहीं है, सक्रिय नहीं है, लेकिन हर सक्रिय वस्तु के पीछे है। वो पीछे है। वही जी है। गुरु- जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। क्योंकि शब्दों से मोक्ष, साक्षी भाव, अकर्ता, पूरा भारत भ्रमित है गुरुदेव। भ्रमित रहेगा।
पूरी तरह से भ्रमित उसी है। को पकड़ के झूला झूल रहे हैं। उसी पे सारा झुंझुना बज रहा है गुरुदेव, पूरे भारत में धर्म के नाम पर। मोक्ष की समझ नहीं। अभी मोक्ष तो बहुत लंबा विषय है। बहुत लंबा है। मोक्ष तो लाखों वर्षों की यात्रा हो सकती है। जी गुरुदेव। मोक्ष बहुत लंबी यात्रा है। जी। कहने के लिए मोक्ष कह लेते, मोक्ष का हिंदी रूपांतरण ये है, यहाँ धरती पर मोक्ष उस अर्थ मायने में कहा जाता है जहाँ हम बंधन से मुक्त हों। जी गुरुदेव। स्कूल से बंधन का अर्थ समस्याओं से मुक्त हों, प्रश्नों से मुक्ति हो जाए। जी गुरुदेव, पहले स्तर पे। यस, प्रश्न से मुक्ति हो जाए। जी। नो क्वेश्चंस, जी। नो एक्सपेक्टेशंस, नो डिजायर्स, जी। नो थॉट्स। हाँ, पूर्ण रूप से मोह का क्षय हो गया। इट मीन्स धरती पर मोक्ष हो गया। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, स्कूल से निकल गए, पुनः स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं। इतना है। जी। तो ये व्यक्ति जब शरीर छोड़ेगा तो होश पूर्वक छोड़ेगा। जी गुरुदेव, ये उद्बोधन बहुत जरूरी है गुरुदेव। अभी कहीं पहुंच नहीं गया वो, मोक्ष नहीं हो गया है। मोक्ष नहीं है, ये भ्रम है। बिल्कुल गुरुदेव। ये समाधि की अवस्था है। जी। जो अभी जी। या एक्सप्लेन, तो इससे इतना ही होगा सिर्फ, जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा तब तक जन्म नहीं लेगा। बिल्कुल गुरुदेव। लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। क्योंकि पहली बात। दूसरी अर्थों में कहा जाए कि मृत्यु के बाद जन्म तो ले ही लिया उसने सूक्ष्म जगत में। जी गुरुदेव, बिल्कुल 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 गुरुदेव, जन्म तो ले लिया है बिल्कुल सूक्ष्म जगत में। जी। जन्म है ही, लेकिन वो अपने अनुसार जागृत अवस्था में है। तो हम वो जब चाहेगा तब जन्म लेगा, नहीं चाहेगा नहीं लेगा। जी। जी। उसको ही देवता कह दिया गया। जी गुरुदेव, बिल्कुल उसे ही देवता कहा गया। जी। जी। और जिसके अंदर कोई इच्छा विचार आशाएं नहीं हैं, जिसके अंदर कोई गड़बड़ चीज़ें नहीं हैं, तो फिर उसको जब आदमी ध्याता है, बचता है, उसके साथ रहता है, वैसे ही होने लगता है। बिल्कुल देवताओं जैसा। जी। जी। कि सब कुछ है, ठीक है, नहीं ठीक है, आनंद है। जी बिल्कुल गुरुदेव, वैसा होता है। जी और गुरुदेव। फिर उनमें भी, देवताओं में भी कैटेगरीज हैं। जी बिल्कुल। देवताओं में भी कैटेगरी है कि किस उससे जुड़ा हुआ है, एनर्जी से, महा ऊर्जा से। जी गुरुदेव। किस परम ऊर्जा से जुड़ा है? विरक्ति की ऊर्जा से जुड़ा हुआ देवता है, जो उसका महादेव है, उससे जुड़ा है। जी या वो ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है अभी भी। हाँ जी। या वो अभी भी अपने आप को राजा माने हुए है। हाँ। होश पूर्वक तो है, लेकिन भोग चाहता है। जी गुरुदेव। यश चाहता है। जी। सम्मान चाहता है। जी। ये देवता है। जी बिल्कुल। और जो शिव से जुड़े हैं, हाँ, वो इससे रहित है। बिल्कुल गुरुदेव। उन्हें सम्मान भी नहीं चाहिए। जी। उन्हें यश भी नहीं चाहिए। उन्हें आपका भोग भी नहीं चाहिए। जी। फुल फ्लैश है, भरे हुए हैं। हाँ, इसलिए वो वो व्यक्ति की ओर जा रहे हैं। इसलिए गुरुदेव वो कहीं फंसता नहीं है, कहीं रुकता इसलिए नहीं नहीं है। फंसेगा कि भोग उसके बन नहीं रहे हैं। भोग बांध नहीं रहा है। भोग काट रहा है वो। जी। दूसरे वाले सेक्टर में जो देवताओं के साथ योजना बनाते हैं, जुड़ते हैं, उनसे मांगते हैं, ये दो, वो दे दो प्रभु, ये दे दो। हाँ। वो सब देते हैं। आप भोग रहे हैं, अब इसको फिर भोग नहीं आना है। जी। जी आपने जो भोग लिया, जी, उसके कर्म भोग बने कि नहीं बने? बिल्कुल बन अब गए। फिर आप आइए जी। दोबारा से जन्म लेने। जी। ऐसा भाव। तो इसलिए साक्षी भाव तो ठीक है, साक्षी भाव में रहना है। और ये भी रहना है कि भाई हम साक्षी भाव में रहते हुए हम अपने सारे कर्म कर पा रहे हैं। हमारे जो दैनंदिन कर्म हैं, जो हमारी कर्तव्य हैं, उनका भी निर्वहन हम कर पा रहे हैं। अपनी तरफ भी ध्यान है, दूसरी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, दोनों काम कर पा रहे हैं। ये देवताओं की उपमा है। और जो केवल दूसरों के लिए काम कर रहा है, वो दिव्य पुरुष है। दिव्य पुरुष है, क्योंकि अपने लिए कुछ बचा नहीं करने को। जय गुरुदेव। देवता के पास अपने लिए भी करना है उसको, हाँ, आगे बढ़ना है, और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। गुरुदेव, जो अगला प्रश्न है उससे अवस्था होती है, और जितना भ्रम समाज में फैला हुआ है मृत्यु को लेकर के, कि अंतिम क्षण में यह याद आ जाता है, अंतिम क्षण में वो याद आ जाता है, और अधिकांश वो मृत्यु का जो वो पल है कि अधिकांश भ्रमित होकर के जा रहे हैं, बेहोशी में जा रहे हैं और होशपूर्वक शरीर छोड़ रहे हैं। इस पर गुरुदेव थोड़ा सा अगर सबको स्पष्ट करेंगे तो जितने भी दर्शक हैं उनके सामने ये स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कई है, लेकिन आपकी बात को जी, इसको पहले करते हैं, मृत्यु के ऊपर। जी।
देखिए मृत्यु क्या है? मृत्यु एक घटना है। जी मृत्यु एक घटना है। जब हम बेहोशी में रहते हैं तो पता नहीं लगती, होश में रहते हैं तो घटना दिखती है। जी जागता हुआ आदमी कुछ भी हो रहा होता है तो देख सकता है, सोता हुआ आदमी कुछ नहीं देख पाता। कहीं बम फट जाए, कुछ भी हो जाए, उसे कोई पता नहीं। जी समझने के लिए बहुत सिंपल है मृत्यु। जन्म और मृत्यु में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल तिल मात्र फर्क नहीं है। जन्म और मृत्यु एक ही है। जी एक ही घटना के दो नाम हैं। जी गुरुदेव, वाह। जन्म और मृत्यु, एक कपड़ा उतार रहा है, एक पहन रहा है। अचानक झटके से देखें कपड़ा उतारता हुआ किसी को, आप ये नहीं बता सकते कपड़ा उतार रहा है कि पहन रहा है। जी गुरुदेव कपड़ा पहनते हुए आदमी को देखे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे पहन रहा है कि उतार रहा है। तो जीवन और मृत्यु एक ही घटना का नाम है। जी जैसे जन्म होता है, हम इसको अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति ने मृत्यु का अपना अनुभव किया है। जी किसी ने बेहोशी में किया है, किसी ने होशपूर्वक किया है। जब व्यक्ति का जन्म हो रहा होता है, इधर ये जन्म है, इधर मृत्यु है, ये मृत्यु हो रही है, इधर समाप्त हो रहा है, और उधर और इधर उसका जन्म हो रहा है, ये बर्थ हो रही है। ये एक ही घटना है, जी लेकिन दो तरह से कही जा रही है। एक तरफ वो सब चीज़ें ख़त्म करके आ रहा है, शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ था, एक तरफ नया शरीर शुरू कर रहा है। जी ये यात्रा वही है। आपने स्टेशन चेंज किया है, कल समय का अंतराल बढ़ ट्रेन घट चेंज सकता किया है, ट्रेन जी गुरुदेव, स्टेशन वही है, ट्रांजिट टाइम थोड़ा बढ़ घट सकता ऐसा है। कह लें। हाँ, ये स्टेशन वही है, जी गुरुदेव, केवल हमें आगे जाना है तो हमने वहाँ से ट्रेन हमने जी चेंज की है। जी ये यात्रा पथ वही आगे है, जी गुरुदेव, स्मृति वही है। कहाँ जा रहे हैं? हाँ। तो भाई हम लुधियाना जा रहे हैं, तो कानपुर से चले तो दिल्ली रुके। जी अब दिल्ली से दूसरी ट्रेन लेंगे तो लुधियाना जाएंगे। जी गुरुदेव, यही तो है। जी तो गुरुदेव, लक्ष्य हमारा लुधियाना था, जी मुक्ति तक, जी मोक्ष तक। जी तो बीच जितने भी स्टेशन आएंगे वहाँ ट्रेन बदल बदल के और लुधियाना तक पहुँचना है, लक्ष्य तक पहुँचना है। जी बात ये है। तो जीवन और मृत्यु एक ही घटना के दो नाम हैं। हर व्यक्ति ने महसूस किया है कि जब जन्म होता है उसे किसी को नहीं पता कि जन्म मेरा हुआ कैसे। बिल्कुल विस्मरण है। लेकिन अगर ध्यान में पीछे आपको ले जाया जाए प्रोसेस में, तो आप अपना जन्म भी देख सकते हैं वाह, कि हमारा जन्म कैसे हुआ। जी गुरुदेव, पिछले 6 जन्म तो बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। पीछे के 6 जन्म बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। ये समझिए कि जो एक्सप्लेन कर दिया जाए कि जीवन और मृत्यु एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। बस एक बेहोशी में मृत्यु होती है तो बेहोशी में जन्म होगा। होशपूर्वक शरीर छोड़ा है, जी मृत्यु को अंगीकार किया है मित्र की तरह, एक घटना की तरह। तो जब भी जन्म लेगा वो तो होशपूर्वक जन्म लेगा। वाह, उसे कोई तप तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं पड़ेगी। वो पीछे से लेके सब अपना राशन पानी चला हुआ है। ऐसे तो जीवन एक घटना है, मृत्यु एक घटना है, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इसलिए इससे घबराने वाला कोई विषय नहीं है। अर्थात गुरुदेव, जन्म में खुशी मनाते हैं, उधर दुख मना रहे होते हैं, जी इधर खुशी मना रहे होते हैं। बिल्कुल, इस पार यही तो है। जी उधर दुख मना रहे हैं, शरीर छूटा है, इधर शरीर मिला वो खुशी मना रहे हैं। तो बेहोशी में इसलिए दुख मना रहे हैं, ये भी बेहोशी में इसलिए खुशी मना रहे हैं। जी गुरुदेव, इसका अर्थ गुरुदेव अगला जो कदम होगा, अगर व्यक्ति को जन्म के कुछ समय के बाद की स्मृति पूरे घटनाक्रम अगर याद है, इसका मतलब उसने पिछला शरीर होशपूर्वक छोड़ा है। जिन लोगों को बहुत छोटी उम्र में
अब बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको 4, 6, 8 महीने के अनुभव ही अपने जीवन के याद रहते हैं। जी गुरुदेव। मतलब पीछे वो अपने जन्मों में काफ़ी होश में रहा है। अदरवाइज लोगों को 4 वर्ष 3-4 वर्ष 3+ के ऊपर ही कुछ याद रहता है। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव। हाँ, उसके पहले का नहीं याद रहता है। यानी बहुत भारी हो बेहोशी में रहा है। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। इसलिए जीवन मृत्यु एक ही है, अलग अलग कुछ भी। इसीलिए भय नहीं होगी, इसीलिए भयभीत नहीं होते। जी, उन्हें पता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चीज। जी गुरुदेव। यहीं से कायरता और पराक्रम का यस, आप लोग रोज मृत्यु का वर्णन करते हैं। जी साधना में जी रोज वर्णन करते हैं। ये छोटा मोक्ष है। जी, ये छोटा मोक्ष है, छोटी मोक्ष है। बड़े बदल जाएगा तो पूरा मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। जैसे रोज हम सोते हैं, एक छोटी मृत्यु है, रोज एक छोटी मृत्यु है। जी, बेहोशी में सोते हैं। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। एक दिन बड़ा जोड़ हो जाएगा, बड़ी मृत्यु हो जाएगी। जी गुरुदेव। जी, शरीर छूट जाएगा और क्या। Remember everything if you have lived with awareness, and if not means the previous life, the separation of body occurred normally. Pokud ne, tak znamená, že jste prošli normálním procesem, ale nebyli jste uvědomělí. इस पर एक टैग लाइन है कि जो होश पूर्वक शरीर छोड़ते हैं और जो बेहोशी में छोड़ते हैं, जो होश पूर्वक शरीर छोड़ते हैं उनके लिए वो एक घटना है, जो बेहोशी में शरीर छोड़ते हैं उनके लिए वो दुर्घटना है। जय हो गुरुदेव, जय हो जय हो जय हो जय हो। टैग लाइन Příhoda, nehoda. मृत्यु का ये 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन है। गुरुदेव 60 साल का प्रश्न का उत्तर आज मिल गया। अद्भुत है। मेरे ख्याल से भोजन का समय हो रहा है आप सबका। जी या गुरुदेव। एक क्वेश्चन और ले लें। गुरुदेव भोजन तो होता रहेगा गुरुदेव। ये मौका कहाँ मिलेगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन कई हैं यहाँ। जी, इधर से कोई हो तो ले सकते हैं if you have any question. मेहमानों से। Máte otázky? Táhnu do té situace a my nejsme nad věcí a reagujeme prostě v nějakých emocích a pak nás to samozřejmě hrozně, jsme zklamaný sami sebou. Já samozřejmě předpokládám, že největším tím obrušovačem těch hran toho ega je sadhana, ale jestli neexistuje nějaká další technika. The question Jan had, it touches many of us actually, and it's a situation, it's about ego. When you got into how can you manage the situation when you get in some kind of situation where you are emotionally attached to the situation, if it might be regarding to your family or close people, and the ego arises, and in such emotional, stress, and the ego comes out, and then something happens, and in 2 minutes you realize that you shouldn't do that was the ego, and you're sorry, and you don't know really what to do, how to manage such situation. I understand the best thing is to do the sadhana, but still we do sadhana, and you think if I may add, sometimes you think you're already perfectly safe because nothing happened for months or years, and then suddenly it comes like a lightning from blue sky. मूल में गुरुदेव कि अहंकार जब तब सर उठा देता है तो कई बार तो पकड़ में आ जाती है, प्रायश्चित होता है, लेकिन क्या करें कि अहंकार हमें डसे ना। मूल में प्रश्न यह पूछना चाह रहे हैं, राइट। बहुत सिंपल जो बात कर रहे हैं इनका पूरा प्रश्न रखा जाए। जी, इनका प्रश्न है कि गुरुदेव कई बार होता है कि अहंकार जन्म ले लेता है, अहंकार चुपचाप से घुस जाता है। नहीं, पर अहंकार जन्म नहीं लेता, अहंकार को हम जन्म देते हैं। हम देते हैं। जी गुरुदेव। यस।
वो कहने के लिए अहंकार कभी अपने आप जन्म नहीं जन्म ले सकता। जी गुरुदेव, ये उसका सहारा नहीं मिले गुरुदेव तो ऐसे भी नहीं हो सकता, वो तो खत्म है। बीज को जमने के लिए धरती चाहिए। जी गुरुदेव, वाह। नो, इट नेवर हैपेंस दैट ईगो is born on its own. Actually, you are the father of ego. And it's just like the seed doesn't grow into a tree or a plant in air, it needs earth. So that earth is you who create, who is the father of it. तो वह कभी परिवार में, समाज में, वार्तालाप में यदा कदा सामने आते रहता है। कई बार तो एहसास हो जाता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई और कई बार वो एहसास नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या करें कि उससे मुक्ति मिल जाए? दृष्टा भाव, केवल साक्षी। जी, कुछ नहीं करना है, साक्षी हो जाना है। अहंकार आ रहा है, मोह बढ़ रहा है, इसके पीछे सिंपल एक कारण है, एक लाइन का कारण है कि हम साक्षी भाव में नहीं रह पा रहे हैं। हम लिप्त हो जा रहे हैं बार बार। हाँ। हम कीचड़ में जाके बार बार फंस जा रहे हैं। जी। और जैसे ही आप साक्षी होंगे तो कीचड़ अलग दिखेगा, जी, परिवार अलग दिखेगा, मित्र अलग दिखेंगे, हम अलग दिखेंगे, जी, सब अलग अलग दिखेगा। जी बिल्कुल। अदरवाइज सब एक साथ दिखेंगे। इसीलिए गुरुदेव आप तंत्र में सबकी डीएनए तोड़ देते हैं, सबको अलग कर देते हैं, पति पत्नी अलग, सब अलग। वो प्रथम चरण है दृष्टा भाव का। दृष्टा भाव है जी। साक्षी भाव की कमी हो रही है जी, इसलिए अहंकार पुष्ट हो रहा है जी, इसलिए मोह बढ़ रहा है। जी, जी। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की खोट। वो अहंकार, that ego should not happen. How to check it? You on your own, it is not possible. That's why you need the Sangat, the company of Master who observes you, watches you, and warns you, directs you. K tomu, aby my jsme sami zjistili, jestli to ego v nás je nebo není, na to naše kapacita nestačí a proto přicházíme k mistrovi a máme společnost mistra, který na nás dohlíží a opravuje, a pokud je problém, tak jej opravuje. And Gurudev does that on every Purnima in Udbodhan. There is a clear message for you, and you can extract it and then say, oh, I was getting lost. Thanks, Gurudev, that you pulled me out. So that's why I often say, request that please observe Gurudev's Purnima Udbodhan. Purnima Udbodhan में सबके लिए वो बहुत स्पष्ट संदेश होता है, जो भी थोड़ा सा राह भटकते हैं। गुरुदेव एकदम वहाँ पे बैठे हुए 100,000 में 10,000 में से 1,000 लोगों के लिए वो बात हो रही होती है, जो भी उस रास्ते पे चल रहा होता है, जो भी गलत चल रहा होता है वो। सो यू नीड संगत, कंपनी. On our own we cannot, because we are involved. Potřebujete mít společnost a to, co guru vlastně o tu opravu dělá každou purnimu, je potřeba to sledovat. बाहर से थप्पड़ पड़ेगा तभी कोई हम लौट करके आते हैं, नहीं तो अहंकार तो महाअहंकार का रूप ले लेगा। गुरुदेव ऐसा ही है। बिल्कुल। एक प्रश्न आया, अभी कोई प्रश्न तो? Any other questions? So clear, you need the company, good company is superior to you, and the supreme company is of the master. That's why it is very holy relationship in the world. Nobody does, because in the world we praise each other. Only the master takes care of it. बेटा हम मेहमानों से कह रहे हैं अभी, मेहमानों से। Překážkou v našem rozvoji v dosažení mukty. Dear Gurudev, I would love to ask you, according to you, what is the biggest obstacle, what is the most dangerous thing on our path towards mukti, on our spiritual development?
हमारे लिए सबसे खतरनाक स्थिति क्या है जहां हम भटक सकते हैं? मूल में प्रश्न यह है, कैसे बचे, कैसे अवेयर रहें? तो उनका प्रश्न वही था कि हम बचें कैसे, क्या सबसे बड़ी Yes, रुकावट? वही इधर अच्छा, वो भी द सेम क्वेश्चन इज देयर। मिलता जुलता क्वेश्चन इधर जी, है। आइडेंटिकल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें दो लिखे हैं और एक क्वेश्चन है कि अगर कोई हमसे हमारा बुरा करे तो क्या उस पर प्रतिक्रिया करना, उसका बुरा करना भोग में आएगा? क्वेश्चन अगर निगेटिव है मतलब उस व्यक्ति के अंदर निगेटिविटी विद्यमान है। अगर निगेटिव क्वेश्चन आ रहा है चाबी पकड़ा दिया इस सभा में जी। निगेटिव रहने का कोई जुगाड़ नहीं है। जी तो बच्चे जितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब पॉजिटिव पूछ रहे हैं। जी, ये पहला नेगेटिव आया है गुरुदेव। ये वो बैठा है पीछे सर्वेश, वो छुप रहा है। तभी तो गुरुदेव उस पर कंस आया था जिसका संहार आपने किया। इस पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए था जी कि यदि कोई मेरे साथ अच्छा करता है जी गुरुदेव, और उसके प्रत्युत्तर में हम भी अच्छा करते हैं जी। तो क्या उसका भोग हमको मिलेगा? जी गुरुदेव। साधक जी, की बदला लेने की स्मृतियाँ बनती नहीं है बनती ही नहीं। साधक में। जी गुरुदेव। जहाँ साक्षी भाव जी प्रबल है, जी गुरुदेव। साफ दिख रहा है कि इस सामने वाले आदमी में क्या समस्या है, जी, तो उससे हमें उसके इंटेंशन पे डाउट होने के बजाय हमें उस पर सहानुभूति होती होनी है, चाहिए। जी गुरुदेव। सिंपैथी होती है बिल्कुल। कि ये अभी इस योग्य नहीं है कि ये बात को ठीक से व्यवहार को निभा पाए। जी गुरुदेव। तो एक साधक का धर्म बनता है सहानुभूति के साथ साथ कि वो उसको उस रास्ते पर लाने की कोशिश करे, हर वो प्रयास करे जी। जिससे वो समझदार हो सके। जी गुरुदेव। जी। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो ये होगा कि आपका संकट कट जाएगा एक निगेटिव आदमी से इंस्टेंट लाभ। और दूसरा आप प्रमाणित हो जाएंगे जी कि आप वीर पुरुष हैं। वाह। धीरता और वीरता। जी। धीरता का अर्थ है धैर्यपूर्वक अपने आप को सही रास्ते पे चलाए रखना। चलाता रहे। जी। और वीरता उसे कहते हैं जो अपने साथ साथ चलने के साथ साथ दूसरे को भी अपने रास्ते पे चला सके। जी वाह। न्याय, धर्म और सत्य के रास्ते पे चला सके, जी, वो वीर पुरुष है। इसे जी। वीरता कहा गया। जी गुरुदेव। तो दो तरह से संकट कटेंगे। जी। आप प्रमाणित होंगे और सामने वाला भी बिल्कुल अच्छा होगा। जी जी। अंडरस्टैंड। तो उस वीरता का पुरस्कार है ही। बिल्कुल गुरुदेव। हम प्रमाणित हो गए। जी गुरुदेव। अब उसके लिए आपको खीर का कटोरा नहीं आएगा ऊपर से कि भैया भोग ले लो, तुमने इसको अच्छा किया, समझदार बनाया, तो हीरे वाला कटोरा ले लो, इसमें खीर आया है। ऐसा कुछ नहीं। जी। आप अपने को प्रमाणित कर पाते हैं, जी। आपका साक्षी भाव मजबूत है, ये दर्शाता है। जी। और आप साधना पथ पे तेजी से आगे जा रहे हैं, समझ बढ़ती चली जाती। यही पुरस्कार है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। और क्या है? बिल्कुल। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है जी गुरुदेव। जी। सर्वेश जी का ही। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। आप लिखते हैं कि यदि साक्षी और दृष्टा भाव ही इसमें रखना है हमें इससे क्या होगा कि सिर्फ जो बुरा होता है क्या उसे देखते रहें साक्षी भाव में। फिर निगेटिव क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन निगेटिव आया। ये जो नीचे का भाव है जो
कि अगर कोई बुरा कर रहा है मेरा या किसी का बुरा कर रहा है या हमारा बुरा कर रहा है, हम उसको सिर्फ देखते रहें साक्षी भाव से। तो इसे कहा गया कायरता। जी 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 गुरुदेव, इसे कायरता कहा गया। जी गुरुदेव, जी कि हम उस गुरुदेव। भाव को देखते रहें दृष्टा भाव से। जी यहाँ पर स्थूल जगत में उसके तमाम उपाय हैं। साक्षी भाव रखते हुए उन स्थूल उपायों का प्रयोग किया जाए, दृष्टा भाव रखते हुए स्थूल प्रयोग किए जाए, साक्षी भाव रखते हुए। इसका दूसरा जो है, जो परंपरा वाला है कि यहाँ पर हम सिर्फ देख पाएँ दृष्टा होके, तो हमारे अंदर अगर उसके लिए ईर्ष्या आ रही है, द्वेष आ रहा है, हाँ ये गलत कर रहा है, जी ये जो है मेरे नुकसान पहुंचा रहा है, सबको नुकसान पहुंचा रहा है, ये दुष्ट है, जी इट मीन्स आपका साक्षी भाव गायब है। जी बिल्कुल। आप पूरी तरह से भौतिकता में उतारू हैं, जी इसलिए आपको वो विध्वंस करता हुआ दिख रहा है। हाँ और जैसे ही आपके अंदर उसके लिए सहानुभूति का भाव आता है, जी एक आदमी आता है कपड़े जला देता है, आप उसको कूटने लगो, मतलब आप में साक्षी भाव नहीं है, नहीं है। आप ठीक से नहीं देख पाए। जी क्या आपके अंदर ये भाव है कि आप किसी के कपड़े जला सकते हैं? वाह, नहीं जला सकते। बिल्कुल। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने कपड़े जला सकते हैं या दूसरों के कपड़े में आग लगा सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसका मतलब ये यूनिवर्सल आंसर है कि कोई किसी का नुकसान नहीं चाहता। नहीं चाहता करना। जी फिर भी अगर कर रहा है, इसका मतलब है कि मानवीय मूल्यों की उसमें कहीं से कमी वही है। है, बिल्कुल। तो यदि आप मानवीय मूल्यों से भरपूर हैं, जी वैल्यूज़ आपके पास हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, तो अपनी वीरता का इस्तेमाल करिए जी और उसको गुरुदेव। अपनी तरह बनाइए। जी गुरुदेव, महावीर की वो महावीर हुआ। यस, वीरता इसी को कहा गया। वीरता जी। नहीं किसी को काट डाला। जो ये तो स्थूल जगत की वीरता है। सूक्ष्म जगत की वीरता ये है जी कि जैसे गुरु है, जी गुरु महावीर है, जी गुरुदेव। अपने जैसे बनाने की कोशिश करता है, जी फिर गिरता है, फिर उठाता है, खड़ा करता है, जी। फिर गिरता है, फिर उठाता है, जी एक गुरुदेव। दिन दौड़ने लगता है। जी गुरुदेव। माँ क्या है? माँ महावीर है। जी ओ बच्चा गिरता है, उठाती है, गिरता है, उठाती है, गलती गुरुदेव, वाह। बार बार करती है। वाह। फिर एक दिन बच्चा दौड़ने लगता है। जी गुरुदेव, हाँ, वाह। तो पत्थर से बात करती है माँ। बोलो बाबा, कहो बाबा, बुआ, जी दादा, जी गुरुदेव। पत्थर से कुछ नहीं जानता, फिर भी माँ इस उम्मीद में बात कर रही है कि कल ये बोलेगा। जी गुरुदेव। ये प्रयास वीरता का प्रयास है, ये वीरता है। है? तो इस वीरता के भाव को माँ अपने बच्चे के साथ प्रयोग करती। तो माँ सबसे पहली जो है महावीर है, उसके बाद सब महावीर पैदा करती है। माँ माँ वो महावीर है जो तमाम वीरों को पैदा करती है। अद्भुत। अभी वीरता का लोग विश्लेषण जो है और ठीक से करने का आवश्यकता है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। अभी उसको ज़्यादा वीर माने कि 4 लोग गए को उठा पटक के मारे, हाँ हाँ बोले बहुत वीर बहादुर है। हाँ जी गुरुदेव। ऐसा एक्सप्लेन कर दीजिए इनको, आगे बढ़ा दें। ही इज़ वेटिंग। एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। ओ
अंतिम लाइन में खो गए गुरुदेव, हाँ, पूरी तरह से डूब गए उस। इसे कहते हैं श्रवण, और श्रवण के बाद मनन। तो अब आप पूरा सुना आपने ठीक से, तो पूरा मनन में चले गए, तो आसपास का होश नहीं रहा। इसे कहते हैं ठीक से सुनना। Ještě se vám nepřeložil, že čím více jste pozitivní, tím lepší byste pozorovateli, a když jste dobrými pozorovateli, není žádná reakce. फिर क्या रहता है? अगर रिएक्शन नहीं तो फिर क्या रहता है? तो वहाँ पर नो रिएक्शन, लेकिन को एग्जिस्टेंस का भाव रहता है। को एग्जिस्टेंस, जहाँ को एग्जिस्टेंस का भाव रहता है, समझो साक्षी है वो। साक्षी को इस तरह से फील कर सकते हैं कि हम साक्षी भाव में हैं या भौतिक उसमें चले गए। प्रयोजन, प्रयोजन अपने साथ घटित होता है, तो हम दूसरों में देख पाते हैं कि हमारे जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, तो फिर हम दूसरे में देख पाते हैं। हमारे सुखी रहने का प्रयोजन क्या है, तो दूसरे में देख पाते हैं। वही साक्षी रहेगा, तभी प्रयोजन दिखेगा। पूरा सुन के, यदि बीच में ब्रेक है तो मनन, ब्रेक नहीं है तो सुन लिया है, अब उसका मनन करेंगे। यानी जो श्रवण है वो नींव है, मजबूत नींव है। सुनना जो है ठीक से मजबूत नींव पड़ गई, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे, तब ऊपर बढ़िया कमरा हमारा स्ट्रक्चर छत पड़ेगी, फिर उसको आगे एक्सप्लेन कर पाएंगे, अनुभव में ला पाएंगे, फिर बढ़िया 2-4 मंजिल बन जाएगी। मजबूत नींव जो है श्रवण है, सुनना ही। तो यही अद्भुत है कि जो व्यक्ति साक्षी भाव में है, दृष्टा भाव में है, अहंकार पास नहीं आएगा, मोह पास नहीं आएगा, दोष पास में नहीं आएगा। अभी आदमी करता क्या है, दोष दूर करने की कोशिश करता है, पानी हटाता है, हटो हटो, अब पानी कहाँ हटेगा? आप पानी से हटो आप पानी से हटो अभी पानी में खड़े होकर पानी को हटा रहे हैं, हट जाए पानी, पानी कहाँ से हटेगा? वो तो उसका स्वभाव है, रहेगा। आप पानी से हटो, साक्षी भाव में जाओ, दृष्टा भाव में जाओ। आप तो लिप्त हो गए पानी के साथ। तो जब घटना के साथ हम लिप्त हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है घटना के साथ, तो फिर समस्या है, साक्षी गायब है। इंसिडेंट की तरह हम देखते हैं चीज़ों को, तो साक्षी रहता है। इंसिडेंट को हम लोग, दृष्टा है जो भी साक्षी भाव में है, जो अकर्ता भाव में है, वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है, बदल सकता है। जी गुरुदेव, घटना को ही बदल सकता है, अकर्ता ही बदल सकता है। अकर्ता, जी गुरुदेव, क्योंकि घटना अकर्ता के कारण घटती है। जी बिल्कुल, अकर्ता ही घटना कारित करता है, जो करता है वो दुर्घटना करता है। जी गुरुदेव, बिल्कुल स्पष्ट है। कर्ता भाव केवल दुर्घटना करता है जी उसके अलावा कुछ नहीं। जी, करता है मतलब
हरिहर है उसमें। जी बिल्कुल। इसलिए महापुरुषों ने बार बार अकर्ता अकर्ता कहा है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी सब कुछ करके भाव अकर्ता का है। करता है, लिप्त नहीं हुए। सब कुछ करने के बाद भी भाव अकर्ता का है। जी गुरुदेव। ये साक्षी भाव। जी वो ठीक से देख पाया कि घटना में वो शामिल है, घटना घटित नहीं कर रहा है। हाँ घटना बिल्कुल। उसके कारण घटित नहीं हो रही है। जी मैं घटना में शामिल हूँ, ये इंसिडेंट है। जी 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 गुरुदेव। मैं घटना घटित कर रहा हूँ, ये दुर्घटना है, ये घटना नहीं है। जी गुरुदेव। ये एक्सीडेंट है। बिल्कुल गुरुदेव। बिल्कुल स्पष्ट है गुरुदेव। आप लोग जब साक्षी भाव में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक उसका आनंद है। जी अभी तो बहुत गहराइयों में जाना बाकी है, जी गुरुदेव। और ठीक से देख पाएंगे और गहराई में जाके देख पाएंगे। एक प्रश्न मनीष जी का था जी कि जो हमारी शरीर यात्रा है जब तक रहती है तो बंधन से मुक्ति का, मेरे पास है क्वेश्चन आपका। इनका क्वेश्चन ये है कि ये जो प्यास है, जो तड़पन है, क्या ये प्यास स्थूल शरीर के बंधन मुक्त होने तक ही है या उससे आगे भी ये प्यास रहती है? ये क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है इसमें समझना कि जब हम बात करते हैं कि हम जन्म मरण के बंधन से हमें मुक्त होना है, मतलब हम शरीर में दोबारा नहीं आए, तो इतने की ही ये बंधन से मुक्ति की बात हो रही है। ठीक है, ये एक स्टेप है कि हम स्थूल जगत से हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया, फिर भी एक अंश यहाँ छूट जाता है। इतने के बाद भी हम इसके बाद जन्म लेने का एक रास्ता छोड़ जाता है। अगर जन्म लेना पड़े तो वो दोबारा आ सके, किसी रूप में आना हो, भले ही साक्षी भाव में आना हो कि नहीं हम एक बार फिर जाना है। जैसे हम आप लोगों की साधना में आप सबका एक अंश और छुड़वा देते हैं, अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, तो जब आप दोबारा से ध्यान करते हो तो जाके उसी अंश में जाके कनेक्ट होता है फिर से, और वो जो अंश होता है वो आपको जोड़े रखता है, बार बार आपको ऊपर नीचे आप करते रहते हैं, ध्यान आता रहता है, उसी के कारण बराबर ध्यान आता रहता है। वो बराबर याद दिलाता रहता है कि भाई ये इधर है। तो अब हम गए सूक्ष्म जगत में, तो जो प्रक्रिया हमने अभी स्थूल जगत में करके और अपने को 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया, तो अब हम पहुंच गए सूक्ष्म जगत में। तो यात्रा जारी है, यात्रा समाप्त नहीं हुई है, मोक्ष हुआ है, केवल प्रश्नों से मुक्ति हुई है। अब ज्ञान को उपलब्ध होने की बारी है एक्चुअल में। तो अब सूक्ष्म जगत में चले गए, तो वहाँ की साधना फिर शुरू होगी सूक्ष्म जगत में। लेकिन तड़पन और प्यास अब 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति की नहीं है। अब लक्ष्य बदल गया है, अब गोल बदल गया। एक्सप्लेन कर दीजिए। या गुरुदेव, वह तड़पन उस समय के लिए इसी समय से रहे। हाँ, तो ये सब ऑटोमेटिक दोबारा से वो प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। सब ऑटोमेटिक ही है, तो वो उसी दिशा में बढ़ता अपने चला अंश की तरफ भागता है। भागेगा। इधर अंश है जी, और उधर वो है जिसका हम अंश हैं।
तो गोल बदल जाता है, यात्रा जारी रहती है। अभी स्थूल जगत को छोड़ के सूक्ष्म जगत में रहने की इच्छा, फिर सूक्ष्म जगत को छोड़ करके कारण जगत में रहने की इच्छा, फिर कारण को छोड़ करके महाकारण में जाने की। ऐसे ये तो स्थूल जगत, इसको छोड़ने का मन नहीं करता आदमी का, क्या रे मर जाएं क्या होगा, वहाँ भी जाके अटक जाते हैं। वहाँ और करम आती है वो सूक्ष्म जगत, इससे लाखों करोड़ों गुना करम आती है, चमक धमक है, तो उसको कैसे छोड़ेगा। तो वहाँ भी आदमी को 10,000 साल 50,000 साल लग जाते हैं धरती के साल के अनुसार। वहाँ इतना वर्ष लंबा नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम धरती की बात करते हैं, है ना। तो फिर वहाँ से होता है, फिर उसकी इच्छा होती है कारण जगत में जाए, तो सूक्ष्म में तपस्या करता है, निकल गया कभी। वहाँ भी अगर शरीर, वो सूक्ष्म शरीर छोड़ते समय जी गुरुदेव, कुछ चीज़ें छूटती हैं, सूक्ष्म शरीर की जो चीज़ें साथ में रहती हैं छूटते हैं। छोड़ते समय जरा सा भी इच्छा आ गया, नहीं इतना अच्छा जगत छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो फिर वापस सूक्ष्म जगत में ही जन्म होगा। जी, वापसी सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म जगत में जन्म होगा फिर से, फिर आप बने रहिए। लेकिन गुरुदेव वो आयोनिक जन्म होगा। हाँ, आयोनिक ये जन्म। नहीं है ऐसी जी, धरती वाला नहीं। मैथुन से नहीं। गुरुदेव, उसका क्या जो सीधा वहाँ जाना चाह रहा है, जो इच्छा तो यही है, लेकिन होता नहीं। मूल नहीं होता है, मूल इच्छा यही है, तभी तो रुक रुक के यात्रा कर पा रहा है। जी, जो बुद्धत्व को पाना चाह रहा हाँ, है। वो नहीं, बुद्धत्व तो सीढ़ी है, बुद्धत्व गोल हाँ, नहीं सीढ़ी है। गोल नहीं है। जी हाँ, गुरुदेव, सीढ़ी बुद्धत्व है, इतना है कि आप रफ्तार पकड़ स्थूल जगत से आप मुक्ति पा गए हैं। पा गए। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बुद्धत्व इतना ही है। इतनी है। जी गुरुदेव, बुद्धत्व के आगे फिर और कुछ आएगा, शुद्धत्व आ सकता है। जी गुरुदेव। हाँ, नहीं ठीक है गुरुदेव। है ना? तो एक यात्रा पथ है जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और ये यात्रा हजारों साल की, लाखों वर्षों की हो सकती है। अपने लक्ष्य के प्रति कितना हम सजग हैं, ये यात्रा का सूत्र समय ये तय हुआ, करेगी। सूत्र ये हुआ गुरुदेव। यस, ओ गुरुदेव, तो वो समय तय करेगी आपकी इसका यात्रा का, कि कितना आप कर पाते हैं। समझ तय करेगी, यही सूत्र है गुरुदेव। बस यही, समय और समझ दोनों चीज़ें तय करेंगी। जितनी समझ है उसके अनुसार यात्रा धीमी या तेज होगी, समय के अंतराल को कम या ज़्यादा करेगी। समय के अंतराल को आपके किसी भी कार्य में, परिणाम में जो समय का अंतराल कम या ज़्यादा होता है, वो आपकी समझ कम या ज़्यादा है उसके आधार पे होता है। बिल्कुल, वाह। मुझे लगता है कि भोजन काफ़ी गर्म हो चुका है। गुरुदेव, भोजन तो गया, तृप्ति पूरी हो गई गुरुदेव। कई चीज़ों, कुछ इस गुरुदेव। क्वेश्चन आंसर में क्या होता है जी कि प्रश्न तो कोई एक करता है, जी लेकिन चूंकि सब जुड़ा हुआ रहता है एक से, जी इसलिए सबके अंदर क्वेश्चन रहते हैं वही, जी गुरुदेव, तो सबको जवाब मिल जाता है। जी बहुत अच्छा गुरुदेव। ये सामूहिक होता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, आपकी थोड़ी
भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।